Thank you all for joining us today. Let us start our session with an inspiring quote. Life is a stage and we all are actors playing our part. The best performance comes from authenticity and empathy. A very good afternoon to all our guests and dignitaries. As your host for this global webinar on importance of acting in the real life, I extend to a warm welcome to each of you. It is our honor to have a audience gathered here to explore the important topic. Acting is not just for the stage. It enhances empathy, communication, and creativity. By understanding and managing emotions, actors develop strong interpersonal skills. This ability to step into different roles translate into real life situations, making us more adaptable and confident individuals. Before we proceed further, let me briefly introduce my organization. SEMS Welfare is a registered non-profit organization committed to creating social impact across various sectors. We focus on education, particularly in skill development and entrepreneurship. Through our initiative, DigiStruction, we have developed training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling in Haryana jails and collaborating with university and colleges. We have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in job. Another initiative, Families empowers women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. We conduct programs on digital literacy, marketing, and career development, reaching over 1,000 women across multiple states. This initiative recently celebrated the milestone of 100 women actively engaged. In short span, STEMS has established itself a catalyst for positive change, equipment individuals with essential skills for employment and promoting women's leadership across industries. Now, it's my pleasure to introduce and welcome our keynote speaker for today's international webinar, Mr. Abhikant Tiwari sir. In the dynamic world of creativity and business, Abhikant Tiwari sir stands as a bridge between imagination and execution. As an Indian acting trainer, writer, director, actor, and expert performance digital marketer, Abhikant Tiwari sir embodies a unique blend of artistic vision and strategic power. His diverse skill set spans acting, storytelling, filmmaking, and digital marketing, making him a transformative force reshaping industries and touching life. At the heart of Abhikant Tiwari sir journey is his profound impact on acting. On behalf of Self Welfare Foundation, I extend a heartfelt welcome to Abhikant Tiwari sir for today's international webinar. Your presence adds a great value to this event, and we are genuinely honored to have with us today. Let's give a huge round of applause. Fiction is about the importance of lives of act in real world. Generally, I would like to talk because क्योंकि acting जो Indian cinema है, हम लोग हिंदी के बारे में ही बात करते हैं. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्टिंग है, हम लोगों ने आप सब ने सबका कोई ना कोई एक फेवरेट आइडल होता है. जो एक्टर एक्ट्रेस अगर आप फेवरेट एक्ट्रेस, अगर आप बॉय हैं तो आपका एक फेवरेट एक्टर होता है. जिस तरीके से हम एक्टिंग को देखते हैं, अगर एक्टिंग में बहुत सारी पर्सपेक्टिव होती है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. जब आप बात करते हैं तो बात करने की जो फ्लुएंसी है, जो शब्दों की पहचान है और शब्द कब किस तरीके से बोलना है. जैसे अभी मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, लाइव बात करते वक्त भी हमारा दिमाग जो है वो शब्द क्रिएट कर रहा होता है, शब्द को फिर सेंटेंस में बनाता है और फिर हमें उन शब्दों का चयन करके किस तरीके से अपनी इमोशन को व्यक्त करना है, ये सारी एक्टिविटी आपको दिमाग में चलती रहती है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो बोलने में हिचकिचाना. और आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है आप जो कम्युनिकेशन वो अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे शब्द, मेरे भाव, मेरे बात करने का तरीका, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो आप तक कन्वे हो आसानी से, बिना किसी रुकावट. ज्यादा करके आजकल के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि जब वो बोलते हैं तो बोलने में हकलाते हैं या फिर उनके पास उतने शब्द नहीं थे जो अपने भाव को व्यक्त कर सकें. तो हमें करना क्या है कि जब भी आप फर्स्ट, हम लोग कह सकते हैं आप, कि जब भी आप बात करें पहले अपने आप को रिलैक्स्ड रखें, अपनी
बात जो भी आपको कहना है वो आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी का नाम पूछना है, अगर मैं नाम पूछूंगा तो मेरे मन में वो क्वेश्चन कि आपका नाम, ये बात आपके मन में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्या पूछने वाला हूँ। जब हम बोलते हैं तब हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो थोड़ी सी अप हो जाती हैं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में अपने घर पे बात करते हैं, अपने भाई बहन से बात करते हैं, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, तो कोई घबराहट नहीं। लेकिन जैसे ही किसी स्ट्रेंजर से बात करना होता है या जब आपको कह दिया जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाओ फिर आप बात, वैसी स्थिति में हम घबरा जाते हैं। सिर्फ हमें खुद का नाम बताना भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, खुद के बारे में बोलना भी काफी डिफिकल्ट लगता है। मैं अपने बारे में शब्द बोलना चाहूँ तो क्या, क्योंकि वो जो घबराहट है वो घबराहट आपके ऊपर हावी। वजह क्या है कि हम लोग अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते पब्लिक के सामने किस तरीके से हम बोले। जब आप किसी से, पहला हो गया आप जब किसी से बात करते हैं तो घबराते हैं। अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए कभी भी आप सही तरीके से इमोशन को व्यक्त कर पाए। आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से सामने वाले को, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब कुछ परफेक्ट वे में नहीं होता। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये जो नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसे ओवरकम कैसे करें। ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको सीखना होगा एक्टिंग। तब आप सोचेंगे कि एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे सिनेमा में तो काम करना नहीं है, मुझे टेलीविजन में काम करना नहीं है। तो एक्टिंग इसलिए सीखना जरूरी है हर किसी को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है आपकी कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा जब एक्टर स्टैंड-अप्स बोलते हैं क्लियर तरीके से, जब वो बोलते हैं तो आपको सारी उनके हर एक शब्द क्लियर होते हैं और आपको समझ में आता है। पॉइंट नंबर 2, जब आप एक्टिंग सीखते हैं अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। रियल लाइफ में जब भी कोई बोलता है तो हम गुस्सा करते हैं, अपने गुस्से पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के पास रखना है ये आपको तरीका बखूबी आ जाता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट को सिखाया जाता है। आपको एक बच्चा जो 18-17 साल का है वो 50 साल के आदमी का कैरेक्टर प्ले करता है, तो वो एक्सपीरियंस वो उसे सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से 50 साल का इंसान अपनी लाइफ को हैंडल करता है और किस तरीके से बातचीत करता है। तो इम्पोर्टेंस ये है एक्टिंग का कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं ज़्यादा करके हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखते हैं, बात करने का पब्लिक स्पीकिंग आजकल सीखते हैं, बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जगह सीखी जा सकती है जो एक्टिंग है। एक्टर एक अच्छा एक्टर हो सकता है। रियल लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक्टर बखूबी प्ले कर सकता है, लेकिन एक मॉडल एक्टर नहीं हो सकता, लेकिन एक एक्टर मॉडल बन सकता है, मॉडल होने की एक्टिंग करता है। वैसे ही एक एंकर सिर्फ एंकरिंग कर सकता है, एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्टर एंकर भी बन सकता है। एक टीचर एक्टर नहीं है, लेकिन एक एक्टर टीचर का एक्टिंग कर सकता है। यानी आपकी लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सारे कैरेक्टर एक साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इसकी रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन, अब आपको एग्जामिनेशन देने, एग्जामिनेशन भी दे ली, आप पास आउट हो गए, अब आपको नौकरी की तलाश, नौकरी के लिए इंटरव्यूज होते हैं। अब इंटरव्यूज में एक इंटरव्यूअर का कैरेक्टर एक एक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर लेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो घबराहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बोलने में हिचकिचाते हैं, अपने शब्द को, अपनी बातों को, अपनी पूरी पोटेंशियल को, जो कुछ आप जानते हैं वो सही तरीके से नहीं रख पाते। अब आप चाहते हैं इंटरव्यू कैसे दिया जाए और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सब का आप ट्रेनिंग देते हैं।
तो ये सारी ट्रेनिंग भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप एक एक्टर की ट्रेनिंग ले लेंगे, क्योंकि अगर आप एक एक्टर हैं तो आप इंटरव्यू भी बन सकते हैं और इंटरव्यूअर भी बन सकते हैं। तो लाइफ के हर एक स्टेज में एक्टिंग की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक बहुत चला है जिसका आप भी जानते होंगे, लोग हंसते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, लाफिंग थेरेपी बोलते हैं उसे। आप पार्क में देखे होंगे बुजुर्ग लोग हंसते हैं, सिर्फ हंसने के लिए आते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसमें लोग हंसते हैं, लाफिंग थेरेपी से बोलते हैं, इससे आपका स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपको वो हर एक इमोशन से गुजरना होता है, चाहे वो हंसने की एक्टिंग, रोने की एक्टिंग, इमोशनल होने की एक्टिंग, या फिर यंगस्टर्स। अगर मैं यहाँ ऑलमोस्ट यंगस्टर्स ही मुझे दिख रहे हैं, कितने लोग हैं जो 20 से 30 के बीच में हैं? सबके पास चैट खुला है ना? यस लिखिए जो 30 और 20 से 30 के बीच में है। मेरी आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल प्रिया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ज्यादा करके अगर हम चलिए, ठीक है, चैट में कोई रिस्पॉन्स दे। So mostly the participants are 2023. ओके ओके, यस ओके, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। तो सारे पार्टिसिपेंट्स मतलब 20-30 के बीच में है ना लोग? सारे नहीं सर, पर मोस्टली है। मोस्टली है ना? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो यंगस्टर्स हैं, ज्यादा करके हार्ट ब्रेक आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं जो 20 और 30 के बीच में होते हैं। अब उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एंजाइटी होता है, किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया तो आप सुसाइड करने चले जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत सारे मेडिटेशन देने लगते हो। तो ये जो इशू है, ये भी एक एक्टर अगर आप हो तो उन इमोशंस के साथ आप इजीली डील कर सकते हो। मानता हूँ वो सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे सिर्फ कह देने से नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्टर होते हो तो सिचुएशंस को बहुत आसानी से समझ पाते हो, क्योंकि एक एक्टर अपने आप को खुद से अलग करके भी अपनी लाइफ को देख सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये सारी चीजें सीखेंगे कैसे, क्योंकि ये सेशन इतना बड़ा नहीं होने वाला है, तो एक मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको कि एक्टिंग सीखने की शुरुआत आप कहाँ से करोगे। आप मान लो आपके घर में फैमिली वाले, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन। अब दिन भर में आप ये मान लो कि जहाँ आप एक अपने घर के कॉर्नर में बैठे हो या डाइनिंग हॉल में बैठे हो और आपकी पूरी फैमिली जो जो भी एक्टिविटी डेज में कर रही है, मतलब आप जहाँ बैठे हैं वो आपका थिएटर का सीट हो गया, और जो पेरेंट्स कह रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो एक पर्दा है, यानी थिएटर है। आप यहाँ ही बैठे हुए अपने ही घर में आप उन लोगों को जज करना चालू कीजिए, देखना चालू कीजिए कि मेरा भाई मुझसे किस तरीके से बात, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मेरा भाई मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है, मेरी माँ मुझसे कैसे बात कर रही है, मेरी माँ मुझसे कब क्या कहती है, उसके अगेंस्ट में आप क्या कहते हो। जब एक बार इस तरीके से अपनी खुद की लाइफ को एक सिनेमा की तरह देखेंगे, ये प्रैक्टिस दिन में करी जा सकती है, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप ये प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि रियलिटी में लोग किस तरीके से बात करते हैं और उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, वो क्यों ऐसा कह रही है या भाई ऐसा क्यों कह रहा है, आपका उस पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जैसा कि आप जब थिएटर में जाते हैं तो कैरेक्टर इसी तरीके से प्ले कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन करना है कि आप किस तरीके से आपकी फैमिली वाले एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे आसान और सरल तरीका है। एक्टिंग सीखने की शुरुआत यही से की जा सकती है, खुद के घर से, क्योंकि एक्टिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स आप दूसरे को किस तरीके से जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको आप देखो, ऑब्जर्व करो, फैमिली से शुरुआत करो,
फिर उसके बाद अगर आप जब मार्केट में जाते हो, मार्केट में लोगों को देखते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, वहाँ हर एक कोई ना कोई कैरेक्टर है, हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये ऑब्जर्वेशन, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन चालू कीजिए। इससे आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपकी एक्टिंग में, खुद को आपकी एक्टिंग स्किल सुधारने के लिए। जैसे जैसे आप इमोशन को ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे फास्ट होने लगती है और आप जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा मकसद क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे डीप में जाता है, वैसे वैसे ह्यूमन इमोशन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे मैं बीइंग एक्टिंग ट्रेनर, जब मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, जब उन्हें डायलॉग्स देता हूँ, वो सीन समझाता हूँ, अगर उस सीन में कहीं भी कुछ भी वो गलत करते हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन अब इतनी हो गई है सिखाते सीखते कि मैं ये बता सकता हूँ जब आप कोई शब्द बोल रहे थे उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो थोड़ी सी रुकावट आई। तो पहली शुरुआत आप ऑब्जर्वेशन से कीजिए, फिर इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी मैं तो कहूँगा कि सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी की हिंदी की किताब जो 9 है उसे लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। बोल के पढ़ना जरूरी है। बोल के पढ़ने से क्या होगा, जब आप कोई भी शब्द या कोई भी कहानी जब आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड आपके मन में इमेजिनेशन आता है, क्योंकि हर एक शब्द में एक इमेजिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अगर कहानी में लिखा हो एक राजा, तो राजा और राजा का महल, मंत्री, सब कुछ आपके दिमाग में बन जाएगा। राजा कैसा होता है वो भी आपके दिमाग में चित्र बन जाए। जब भी कोई हम शब्द सोचते हैं इमेज हमारे दिमाग में, तो ये है इमेजिनेशन की शुरुआत। आप ऐसे रीडिंग से कर सकते हैं, क्योंकि जब रीडिंग करोगे आपकी, जैसे मान लीजिए आपने एक रफ आइडिया ले लेते हैं, 11 कहानियां आपने पढ़ी, जब आप बोलते हो तो वो इमेजिनेशन आपके अंदर होती है कि किस तरीके से आपने पढ़ा था, उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है। उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज इम्प्रोवाइजेशन, यानी आप उसमें खुद से क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत फेमस है, सबको पता है, सबने पढ़ा है, लेकिन जब वो कहानी आप कहेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव से उस कहानी में कुछ न कुछ चीजें जरूर आ जाएंगी, क्योंकि उसमें आपके शब्द होंगे, आपके इमोशन होंगे। तो ये है इम्प्रोवाइजेशन। 3 बेसिक फंडामेंटल एक्टिंग का, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन। ये कभी भी कहीं से भी सीख सकते हैं, और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाइए। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख के भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप गाइडेंस के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रेनर को जो आपको लगता हो कि मुझे अच्छा सिखा सकते हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद को डेली कुछ ना कुछ लर्निंग पेज में डालिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपनी बातों को दूसरे के सामने किस तरीके से रखें। अगर मैं सच कहूँ तो पूरी आपके रियल लाइफ में इतना हर किसी का काम होता है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से दूसरे के सामने कैसे रखें। मुझे जो कुछ भी कहना है, बिना घबराए, बिना डरे, बिना हिचके, अगर मैं वो बात कह देता हूँ तो वो मेरा काम हो जाए। आपके मन में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो डर आता है, वो इन्हीं कारणों की वजह से आता है कि आपकी जो बातें हैं वो क्लियर, और आप घबराते हैं। अगर आपको कम्युनिकेट करने में घबराहट होती है तो सबसे बेस्ट तरीका है सॉरी कि आप जब भी आपको कहीं कुछ बोलना हो, स्टेज पर बोलना हो, कहीं करना हो, तो उससे पहले 2 मिनट डीप ब्रीथ लीजिए, सांसों को अंदर लीजिए। ऑलवेज जब भी आप डीप ब्रीथ करते हैं तो सांस नाक से लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो घबराहट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, और आप बहुत आसानी से अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि रियल लाइफ में, मैं तो कहता हूँ कि रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग सीखना, क्योंकि बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि 80-90% ऐसे आंकड़े हैं जो डेली लाइफ में लोग
फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। इवन गुस्सा तो एक ऐसा जॉनर हो गया है, गुस्सा एक ऐसा इमोशन हो गया है कि हर किसी को गुस्सा आता है, हर एक पॉइंट। और गुस्सा ही एक कारण है जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबको एक्टिंग जरूर सीखनी चाहिए, चाहे आपको सिनेमा में काम करना है या नहीं करना, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप बहुत शुक्रिया। Thank you, Abhikant Tiwari, for your insightful presentation. Our viewers and participants have a few questions they would like to answer. With your permission, may I proceed with the first question? Yes, 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 sure, sure. System. Personally, if you have any question, put in the chat box window, please. So the first question is, how can someone without formal acting training start incorporating acting principles into their daily life? देखिए, ट्रेनिंग एक पार्ट है, मैं मानता हूँ, बट बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ मतलब इतने शॉर्ट टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है, बट आप शुरुआत कर सकते हैं। जो मैंने 3 चीजें बताई, ऑब्जर्वेशन से चालू कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन एंड इमेजिनेशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आप अपने रियल लाइफ में, और एक मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि आप खुद को अपनी लाइफ से हटा के आप अपने ही घर में बैठिए और अपनी पूरी फैमिली को एक्टिविटी करते हुए देखिए और देखिए किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं। तो वहां से आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस तरह वो क्या, क्योंकि वो रियल लाइफ में चीजें हो रही हैं और लाइव हो रही हैं, तो वहां आपको एक जजमेंट मिलना चालू होगा। क्योंकि जब हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में बहुत सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल्स मिलके बनाते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में भी वही चीजें हो रही होती हैं, सिर्फ कैमरा नहीं होता। तो आप सीखने की शुरुआत कर सकते हैं एकदम स्टार्टिंग लेवल से, पढ़ना और ऑब्जर्वेशन करना। कहानियां पढ़ना चालू कीजिए और कहानियों में कैरेक्टर ढूंढना चालू कीजिए। ज्यादा करके अगर सिनेमा के लिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि आप मूवी के सीन्स देखिए और अपने अंदाज में उसे प्ले कीजिए। रियल लाइफ के लिए रियल लाइफ के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अदरवाइज ऑप्शन यही है कि कोई ना कोई सीखने के लिए गुरु तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप 9th-10th में पढ़ते हो तो वहाँ कोई ना कोई टीचर होता है सिखाने के लिए, और हर जगह आजकल तो ट्रेनिंग के लिए लोग अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चंस? Hi sir, I just here have some network issue. Okay, okay. So the next question is, how do you think taking action rather than just planning or thinking impact our success and growth in real life? हाँ, ये मैंने अभी वही बताया था मैंने कि Okay. हाँ, ये हो गया। Thank you very much, sir, for answering all questions posed by the participants. We truly appreciate your valuable insight. Once again, I express my deepest gratitude to Mr. Abhikant Tiwari, sir, for taking the time from his busy schedule to share her knowledge with us. Your presence has greatly enriched this session, and we are deeply thankful for the fascinating, informative, and perspective you have provided. We eagerly look forward to further workshops that will advance both our personal and collective understanding. I also want to thank our attentive audience for their intelligent question and active participation. Your involvement has made this event even more meaningful. Now it's time to announce the most active participant of today's session. The most engaging participant is Abhay. Abhay, heartiest congratulations to you. A great event never truly ends. It's only take a pause and leaving us eager for the next. All good things must come to end, and today's workshop will filled with knowledge make it especially hard to say goodbye.